Hello students, today we will discuss a question of force of friction of class 11 physics and also for JEE Mains. Yeah, just understand the question. There is a block capital A of mass small m is placed over a block B of mass capital M. The friction as mu is 0 between B and S, so it means there is no friction between block B and surface. Then you have to find out what are accelerations of A and B. आपने निकालना है A और B का acceleration. दो कंडीशन दिए गए हैं. When F is 0 between A and B, जब A और B के बीच की सरफेस पर कोई फ्रिक्शन ना हो, फिर मुझे चीज को निकालना है. A और B के एक्सेलरेशन निकालने हैं जब A और B के बीच में फ्रिक्शन 0 ना हो, अर्थात फ्रिक्शन है. इस एक्सेलरेशन निकालने के बाद आपको दो और सब केसेस निकालने हैं. Also find the relative acceleration of A with respect to B. जब इस बीच में सरफेस के बीच में A और B के बीच में फ्रिक्शन हो, तो A और B के एक्सेलरेशन निकालने के बाद B के रिस्पेक्ट में A का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है. और पार्ट B में find the time after which A falls from B. वह समय निकालना है जिसमें एक्सेलरेशन अलग होने की स्थिति में B पर से A गिर जाए. Just take up the first case. First question, that is F is 0 between A and B. जब A और B के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो फोर्स F के कारण केवल ब्लॉक A मूव करेगा. Then only block A will move on B and B will be at rest. इसलिए F इसलिए for A F is equal to M acceleration of A, that is equal to F by M, where acceleration of B is 0. Now just take up the second case when at force of friction is not 0 between A and B. Then what should be the figure? In this way, this is the block A of mass M, and this is the block B, and this is the block A of mass small m. Force is applied on it. Then there will be a force of friction between A and B, which will oppose the possible motion of A along F. Then the normal reaction, and this amounts to mg. So n is equal to mg, Fs is equal to mu s mg. Then then if f is less than Fs, then A will not move on B, but due to reaction of Fs, A and B, Fs on B, A and B both sides with same acceleration. Just find it out. What will happen? Net force on A. So to F on A plus B is equal to F. इसलिए acceleration of A and acceleration of B both are same.
that is F बटा small m plus capital M. Hence force on B is equal to capital M into acceleration of B, that is mf बटा small to capital M. अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। पहले केस में हमने डिस्कस किया है जब अप्लाइड फोर्स A पर का अप्लाइड फोर्स A और B के बीच के स्टैटिक फोर्स को फ्रिक्शन से कम हो, तो उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इस केस पर कि अगर A और B के बीच के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स अधिक हो जाता है, then A moves on B due to net force F minus FFK. Here we have not written FFS but FFK. कारण once body moves, this static force of friction or limiting force of friction changes to kinetic force of friction, and reaction of FFK on B by A moves B. चूंकि B के द्वारा A पर अपोजिंग फोर्स kinetic force of friction लगाया जा रहा है, अगर इसको एक्शन के रूप में लिया जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ के अनुसार A B पर उतना ही रिएक्शनरी फोर्स डालेगा FFK in the direction of applied force। अतः A का मूवमेंट F माइनस FFK के कारण होगा और B का मूवमेंट FFK के कारण होगा। इसलिए as A and B moves with different acceleration, A और B के acceleration बराबर नहीं होंगे। अब आते हैं A पर नेट फोर्स निकालते हैं। अप्लाइड फोर्स F है, अपोजिंग फोर्स किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दिस इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ A, दैट इज A कैपिटल A, जहां पर FFK म्यू के mg लिखा जाएगा, जहां mg नॉर्मल रिएक्शन के लिए आया है। इसलिए यह इक्वेशन F माइनस FFK चेंज करके होगा F माइनस म्यू के mg बराबर m स्मॉल a, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ A, hence एक्सेलरेशन ऑफ A comes to be F माइनस म्यू के m स्मॉल mg बटा स्मॉल m। अगर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो F बाई m आएगा, और जब म्यू के mg के नीचे m आएगा तब से कट के म्यू के g आना है इसको। अब B को मूव करना है, A के द्वारा B पर इस किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिएक्शन डाला जा रहा है, इसके चलते B मूव कर रहा है, इसलिए B पर नेट फोर्स किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होगा, और ये बराबर होगा मास ऑफ B और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट का। इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ B किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बटा कैपिटल M आना है, और किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू के mg आया है। यह केवल किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केवल कैपिटल अपर ब्लॉक A के मास स्मॉल m के कारण है, इसलिए A के एक्सेलरेशन और B के एक्सेलरेशन बराबर नहीं है। अब पार्ट 1 A जो है क्वेश्चन 2 का, इसके अनुसार नेचुरल एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है। दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन है, तो एक्सपेक्टेड निकलेगा। करना क्या है, B के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए A के एक्सेलरेशन से B के एक्सेलरेशन घटा देना है। सिंबल कैसे लिखा जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसका सिंबल बाद में आएगा, और जिसका निकालना होता है वो पहले आएगा। अब हमने करना क्या है, A के एक्सेलरेशन का वैल्यू F माइनस म्यू के स्मॉल mg बाय स्मॉल m रखना है, तब B के एक्सेलरेशन की जगह पर म्यू के स्मॉल mg बाय कैपिटल M डालना है। इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, स्मॉल m कैपिटल M जाकर यहाँ गुना होगा कैपिटल MF, और म्यू के स्मॉल mg में कैपिटल M गुना होगा तो म्यू के स्मॉल m कैपिटल mg आएगा, और तब स्मॉल m को ले जाकर यहाँ गुना करेंगे तो माइनस म्यू के m स्क्वायर g आना है। इस दोनों में म्यू के स्मॉल mg दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, इसके कैपिटल MF माइनस म्यू के स्मॉल g को बाहर कर दें और कैपिटल M, और यहाँ पे स्मॉल m बचेगा। एक्सेलरेशन होंगे रिलेटिव A का B के रिस्पेक्ट में। अब आपका सेकंड पार्ट आता है B। ये कहता है कि जब दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो कितने समय में A B पर से गिरेगा। माना B का लेंथ L है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इक्वल टू u प्लस h स्क्वायर बाय 2। इनिशियल स्पीड तो 0 होता है तो u 0 हो जाएगा, और s कवर डिस्टेंस पर L आना है, और a t स्क्वायर बाय 2 से t 12 बाय। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आना है, यह एक्सेलरेशन इसको ऐसे लिखना चाहिए, यह एक्सेलरेशन
रिलेटिव होगा, क्योंकि बोथ बॉडीज आर मूविंग, सो A will fall from B due to its relative acceleration with respect to B। यहाँ डाल देना है स्मॉल a b, और ये कहाँ से आएगा, ये वैल्यू उठा के डाल देना है, तो कितना आ जाएगा t = 2l बटा ये ऊपर वाला नीचे रहेगा कैपिटल M माइनस न्यू के स्मॉल m, और स्मॉल m कैपिटल M इंटू g, और यहाँ पर कैपिटल M है, स्मॉल m और कैपिटल M आ जाएगा। ये टाइम निकलेगा, इतने टाइम में b पर से a को गिर जाना है। यह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते रहे हैं इंजीनियरिंग लेवल के एग्जामिनेशंस में।